एक बार फिर हाथ लगा, बताता हूं मैं कौन हूं। थैंक यू। मेरा नाम है सारांश सेठ और स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे चैनल प्रॉपर्टी सारांश। Guys, when we were in school, we were taught about a certain words that typically begin sentences as questions. The words were how, when, whose, whom. But back then, I did not know that there will be one word which will carry such utmost importance while purchasing a property. And the word was where. Not like this and dressed like that. How could I wanna be? Irrespective of the nature of the project, its fate heavily depends on its location. So today I'm gonna talk about a new residential project which claims to be at the best location of Noida. I'm talking about Godrej River Inn. I got a feeling like never before. That all these miles were worth it. Chasing your heart. Well, is this project and location really the best? Let's find out. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज क्लिक यहाँ, यहाँ एंड यहाँ। शुक्रिया। शुरू करते हैं इसकी लोकेशन से। जब भी हम घर लेते वक्त उसकी लोकेशन को इवैल्यूएट करते हैं तो अब हम टिपिकली 3 चीजों को वेटेज देते हैं। सबसे पहली, हमारे घर से हमारा वर्क प्लेस से कम्यूट करना कितना कन्वीनियंट है, मतलब कि उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या सीन है। दूसरा, आसपास का इकोसिस्टम कैसा है, मतलब स्कूल, हॉस्पिटल, डेली नीड्स, शॉपिंग एक्सेट्रा। तीसरा, हाउ मॉडर्न स्लैश पीसफुल स्लैश प्रिटी स्लैश प्लीजिंग इज द सराउंडिंग एरिया, बेसिकली द ओवरऑल वाइब ऑफ द एंटायर विसिनिटी। तो आइए देखते हैं रिवर इन 3 पैमानों में से कितने में फिट बैठता है। Since the project is located in Sector 44, it could be the first choice for those Delhi businessmen or businesswomen जिन्हें अपनी BMW जैसी गाड़ी भी दिल्ली की कॉम्पैक्ट सड़कों पे 40 की स्पीड पे चलानी पड़ती है, पर ये लोग चाह कर भी अपने जमे जमाए धंधे की वजह से नोएडा शिफ्ट नहीं हो पाते। The most impactful fact of this location is its connectivity with Delhi. You can touch Kalindi Kunj, DND toll booth and Mayur Vihar within just 4 to 8 kilometers distance from here. I don't know luxury property में रहने वाले मेट्रो यूज करेंगे या नहीं, पर फिर भी बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन इज जस्ट 2 किलोमीटर्स। सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको काकेदा ढाबा, फ्लट्टी मोमोज, सन्नी चिकन सूप नहीं मिलेगा तो आप गलत हैं। सेक्टर 44 का इकोसिस्टम मस्त सॉलिड चहल पहल वाला है। स्ट्रीट फूड ऑप्शंस, रिनाउंड स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बेस्ट मॉल्स, हाई स्ट्रीट शॉपिंग की टेंशन मत लेना, सिंस दे आर ऑल एट अ शॉर्ट ड्राइविंग डिस्टेंस। अब अगर हम तीसरे पैमाने की बात करें तो गोदरेज रिवर इन कुड बी अ लेट डाउन। ये है सेक्टर 44 का गूगल बाबा map. As you can see, the plot is sandwiched between all types of developments around it, which is not too pleasing to eyes. The aerial view can be quite brownish, dull and dense. Though Godrej is claiming this project to have a golf course and botanical garden view, but to my understanding, it will be diagonal, far-sighted and could be obstructed from most units. Godrej River Inn is cooking on a land size of 6.45 acres. The shape of the parcel is quadrilateral, means it's neither square or rectangle or even a rhombus. There'll be total of 4 residential towers, 3 aligned in a row and 1 placed opposite them slightly haphazardly. Tower 1, 2 and 3 will be 23 stories each and Tower 4 will be of 38 floors. As the name River Inn suggests, project की थीम एक waterfall, river वगैरह पे बेस की जाएगी, पर 6.5 एकड़ में 4 टावर खड़े करने के बाद कितनी जगह ब्यूटिफिकेशन के लिए बचेगी ये देखना होगा। अरे फैन, अरे ऑटोग्राफ क्या, सेल्फी ले लेते हैं यार। अरे भाई सेल्फी के लिए नहीं, जागरण की पर्ची कटवाने के लिए आया है। बोल जय माता दी। जय माता दी। अच्छा, जय माता दी। थोड़ी देर बाद आना भैया। Total units in this society is 416. Now 64 units per acre is generally considered good in terms of density. पर ये good, very good है या नहीं, ये आप प्राइस जानने के बाद डिसाइड कीजिएगा। The club will be accommodated between Tower 3 and 4, which is going to be a G+1 structure with 45,000 square feet volume. There'll be few retail shops beneath the club having access from outside the society as well. Out of 4 towers, Godrej has as of now opened acquisition in 3 towers. ये सीधे वाले। Each tower has 4 units per floor with 3 lifts having 3 BHK and 4 BHK typology. 3 BHK का साइज है 2700 and 4 BHK 3700 स्क्वायर फीट का है। दोनों ही यूनिट्स में सर्वेंट क्वार्टर का प्रोविजन भी है। यूनिट लेआउट की पीडीएफ अभी तक गोदरेज ने शेयर नहीं करी है और रेरा वेबसाइट से डाउनलोड की हुई कॉपी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बहुत ही धुंधली है। मेरी तो शायद उम्र हो चली है, आप देखो अगर आपको समझ आती है तो। बैन स्टोक्स ठंड बहुत है यार आज। वैसे तो हम कीमत सुन के किसी भी चीज का अंदाजा लगाते हैं, पर क्या आज इस प्रोजेक्ट के बारे में सुन के इसकी कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं आप? Godrej River Inn का प्राइस इज गोइंग टू बी 27,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट।
Yes, you heard it right. This is the costliest project of Noida till date. वैसे मेरी समझ के हिसाब से एक अच्छी और एक बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन में शायद 3 से 4 हजार रुपए का डिफरेंस होता होगा। गोदरेज को इस प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए टॉप नॉच फिटिंग और फिनिश देनी होगी, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि वो ब्रांड इमेज को ध्यान रखते हुए देंगे भी। एज ऑफ नाउ रेरा आने के बावजूद भी गोदरेज 27,000 रुपए रेट को बेस बना के EOIs कलेक्ट करके मार्केट टटोल रहा है। Probably they are trying to gauge the overall price acceptance from the market। उसी हिसाब से प्री लॉन्च डिस्काउंट के नाम पे ये लोग प्राइस को डिफाइन करेंगे। अपने दिल और दिमाग की सुनकर एक एडवाइस जरूर देना चाहूंगा कि इस प्राइस पे वही लोग खरीदने की सोचें जो किसी भी चीज के पसंद आ जाने पर उसका प्राइस टैग नहीं देखते। What I mean to say is कि even if Godrej offers exit at 20% पेमेंट, अप्रिसिएशन लेके ट्रेड करने वाली सोच रखने वाले इन्वेस्टर्स कृपया इससे दूर रहें, नहीं तो ट्रॉपिकल आइल जैसे कॉस्ट टू कॉस्ट पे भी एग्जिट नहीं मिलेगी और फिर लोन लेके उस महंगे घर की EMI देते रहोगे जिसमें आपको रहना भी नहीं है। आपकी एक प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट का आधार पेमेंट प्लान नहीं, बल्कि उस प्रोडक्ट का एक जेन्युइन पुल होना चाहिए। गोदरेज रिवरिन एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा, बट एट अ वेरी एस्पिरेशनल प्राइस। हेंस एज पर माय ओपिनियन इट शुड बी कंसीडर्ड बाय एंड यूजर्स ओनली। तो आज की वीडियो में गोदरेज रिवरिन पे मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएं। मैं वीडियोस आप लोगों के लिए क्रिएट करता हूं, तो आप लोगों का फीडबैक मुझे आप लोगों को अच्छी वीडियो देने में मदद करेगा। तो इतना घुमा फिरा के क्यों लिख के देता है यार, सीधा सीधा दिया करो। थैंक यू। Here we go now.